Now, today's topic is scheme of fundamental rights in Indian Constitution. Scheme of fundamental rights in Indian Constitution. So, under that, we are going to see that when this scheme has been started, from where this fundamental right concept have been taken into. In actual sense, the concept of this fundamental rights, first of all, has been seen in Magna Carta of India, which was derived from a written or which was prepared in England during 1215. That was called as a Magna Carta. It was a written document and it was related to fundamental rights. Now, such kinds of things, that is a concept of fundamental rights, were present in the Magna Carta of England as well. Now, after that, the period of preparation of fundamental rights, or when preparing this fundamental right, what we have to see is that how they have been get prepared and what are the things which are required to see here. Number one, when the preparation of fundamental rights were going on, at that time we have taken help of यूएस बिल्स ऑफ राइट्स. अब ये यूएस बिल ऑफ राइट्स जो है, उसको फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करते टाइम पे उसका हेल्प लिया गया. सो our right, topic of fundamental right is totally inspired by यूएस बिल ऑफ राइट्स. यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, उसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर यूएस बिल ऑफ राइट्स की पूरी छवि दिखती है. क्यों? तो ये पूरा टॉपिक हमने वहां से उठाया था. सो इन इंडिया वी विल हैव एंड वी विल गेट फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में ये जो है इंसर्ट किया गया है और ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 12. यू कैन पॉइंट आउट, आपके पास में लिख कर रखिए, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है वो पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. एग्जाम में हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, जैसे कि इन विच पार्ट द फंडामेंटल राइट्स आर एम्बडीड. सो देयर में बी options like part third, part fourth, part fourth A and part fifth. So the correct answer is part third. Now, sometimes the question is a twisted one. From which article to which article fundamental rights are embodied in part third? So it is from article 12 to article 35. So article 12 to 35 is the portion which is called as part third of Indian Constitution. So preparing this fundamental constitution, we have taken the help of US bill, that is US bills of right. And after taking the initiative for preparation of fundamental rights, uh, our constitutional machinery, or what you are calling at uh, constituent assembly, they have created certain objective of fundamental rights. What is the objective? So there are two objective which has been put forth in front of we people. The number one is that to secure the political freedom of people, that means we people. हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम जो है उसको सिक्योर करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स को ऑब्जेक्टिव में रखा गया है. और साथ ही साथ में इसमें दो चीजें बताई गई. नंबर वन में ए और बी. सो ए इज सेइंग दैट the political freedoms are secured by fundamental rights, and secondly it is saying that social and economic freedoms are secured by directive principles of state policies. यानी कि सिर्फ एक ही बेसिस के ऊपर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिपेंड नहीं है. वो और डिपेंड कौन सी चीज के ऊपर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. तो पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ को मिलाकर ये सारी चीजें हो सकती है. सो सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स जो भी हमारे हैं वो सिक्योर किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू, बट they are implemented through freedoms, that is political freedoms, which has been secured
by fundamental rights. Secondly, why fundamental rights are fundamental? There are two reasons. It is the first reason that it is all round development of every person which is created by the fundamental right. So the most important thing is that it is making all round development of every person first, and second is that it creates existence in dignified manner without which an individual cannot survive. तो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन करता है, यानी कि हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यही फंडामेंटल राइट्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। जैसे कि हम किसी प्रोफेशन में हैं, अब जैसे आप लोग इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स बन रहे हो, तो जैसे आपने एडमिशन ले लिया तो इट इज लाइकली टू बी ए पर्सन ऑफ इंजीनियरिंग कैडर, आप जो है एक इंजीनियरिंग कैडर के पर्सन हो गए। तो इट इज व्हाट इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्निफिकेशन। आपको एक डिग्निटी लग गई कि भैया ये बंदा जो भी है पढ़ाई के बाद में इंडिविजुअल कैपेसिटी में सर्वाइव नहीं हो सकता, तो इसको एक डिग्निफिकेशन देना चाहिए। तो क्या है, तो भैया ये बंदा जो है इंजीनियर है, फिर ये इसने इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, तो वो स्पेशलाइजेशन में इंजीनियर है। सेकेंड थिंग जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट किस तरह हो रही है कि राइट टू एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट, तो हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट एजुकेशन के थ्रू हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट it is most important for all round development of every person, and second thing existence in dignified manner without which an individual cannot survive. अगर कोई किसी बंदे को कोई डिग्निफिकेशन अगर नहीं मिलता है, खाली एक आदमी है इतना ही बोलेंगे, तो उसको डिग्निफिकेशन क्या है? देयर इज नो डिग्निफिकेशन। सो फॉर दैट पर्पस किसी को क्लास 1 ऑफिसर बोलते हैं, किसी को डायरेक्टर बोलते हैं, किसी को सब डायरेक्टर बोलते हैं, किसी को सेक्रेटरी बोलते हैं, किसी को असिस्टेंट सेक्रेटरी बोलते हैं। तो व्हाट आर दीज पोस्ट? दीज पोस्ट आर क्रिएटिंग डिग्निफिकेशन ऑफ ए पर्सन। डॉक्टर इज देयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज देयर। सो ये डिग्निफिकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही हम लोगों को मिल रहा है। कोई वकील है, कोई टाइपिस्ट है, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई क्लास 1 पोस्ट के ऊपर काम करता है, कोई आईएएस अधिकारी है। तो ये सब डिग्निटीज है, अलग अलग डिग्निटरीज बोलते हैं हम लोग। तो वो डिग्निफिकेशन करने का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू सिक्योर द पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द पीपल, और सेकंड वो जो है डिग्निफिकेशन और आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है उसको अभी देखेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, सभी को समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर के टॉपिक्स देखना अभी हमने शुरू नहीं किया है, अभी इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स नंबर 1, ये पॉइंट में नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स आर चेक ऑन अनलिमिटेड पावर ऑफ स्टेट। स्टेट यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या कंट्री, बोथ। तो यहाँ पर जो है स्टेट के जो अनलिमिटेड पावर्स दिए हैं उस पर फंडामेंटल राइट्स को चेक कहा गया है। तो क्यों कहा गया है? ये अनलिमिटेड पावर्स, दूसरा आर्बिट्ररी पावर्स भी उनके पास में रहता है, एंड देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस which are imposed. Fundamental rights imposes certain restrictions on state and protects individual. जब ये लॉ बनाया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा लॉ जो बनाया गया है उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो वो गलत तरीके से ना हो। Now this power which has been given to
the people who are called the individuals who has been appointed as political leaders, whenever they are getting unlimited power to enact the law, they are also having the arbitrary power, and it is seen that uh, there may be a misuse of this power. हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कई पावर्स ऐसे जो दिए हैं लॉ बनाने के लिए, अनलिमिटेड पावर्स जिनको कहा जाता है। सेकेंडली, इसके साथ में आर्बिट्ररी पावर भी उनको दिया गया है। सो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं स्टेट्स के ऊपर, ताकि ये फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर पाए। यानी कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए अनलिमिटेड पावर और आर्बिट्ररी पावर का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए इस चैप्टर में, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, हम लोगों को प्रोटेक्शन का क्लॉज दिया है। और वो प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर सीधा बताया गया है कि इट इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला चेक जो है पावर्स ऑफ स्टेट के ऊपर रखा है। दूसरी बात ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स हमको किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम स्टेट के अगेंस्ट में इस्तेमाल करते हैं, या फंडामेंटल राइट्स हम कंट्री के अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं? सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द पर्सन। हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ में फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि स्टेट जो लॉ बनाता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने आपको दिया है कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अब वो क्या क्या है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। तो पहले ये जान लो कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट अगेंस्ट द पर्सन। क्लियर? Have you followed? If you have followed, please type followed in the chat box. Great. तीसरी बात ये है, they are not absolute. फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, 100% दिया नहीं है कि हमारे खिलाफ या हमारे लिए जो प्रोटेक्शन दिया है वो 100% प्रोटेक्शन नहीं है। अभी हमने देखा कि उन स्टेट की अनलिमिटेड पावर जो है लॉ बनाने की, उसके ऊपर चेक लगा दिया है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल भी ये बनाए हुए लॉ का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो तब यहां पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, और इसीलिए कहा है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, दे आर कंडीशनल वन। सो इट इम्पोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर इम्पोज हो सकते हैं? पर्सन्स के ऊपर। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑन इंडिविजुअल्स। सो any individual who is connected with this fundamental right, all those fundamental rights are not 100% absolute, they are conditional. There are certain reasonable restrictions. The word reasonable has been utilized. These reasonable restrictions are utilized for certain purposes. अभी इतना ही जान लो कि fundamental rights जो है absolute नहीं है, उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। स्टेट को फंडामेंटल राइट्स बनाते टाइम पर लॉ का वायलेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ प्रोविजन नहीं बनना चाहिए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स उनकी पावर के ऊपर चेक है। लेकिन दूसरी तरफ से स्टेट जो लॉ बनाता है वो 100% हमको जो है एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं बनाता है। तो वहां पर कुछ कंडीशंस है वो हमको फॉलो करनी पड़ती है। चौथी बात यह है, इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे लिए बनाए गए हैं वो इमरजेंसी में, इमरजेंसी कब? नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो किस तरह सस्पेंड हो सकते हैं? तो नंबर 1 है, एज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी
आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड, यानी कि इधर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, उधर ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है 6 फंडामेंटल गोल्डन फ्रीडम्स जिसको बोलते हैं, वो फ्रीडम्स ऑटोमेटिकली कट ऑफ होते हैं। दूसरी बात ये है कि along with this, if President of India wants that he can suspend other fundamental rights also, अगर इस आर्टिकल 19 के अलावा अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि बाकी के फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दे, तो ही कैन डू सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि सारे फंडामेंटल राइट्स अगर निकाल लिए गए तो कैसा? तो यहां पर एक्सेप्शंस है, तो दो एक्सेप्शंस दिए हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 आर्टिकल 20 और एक्सेप्शन नंबर 2 आर्टिकल 21। ये दोनों भी आर्टिकल जो है ये नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किए जा सकते, या उसको सस्पेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोहिबिट किया है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? तो यस, यू कैन गो अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड टू आस्क the question about article 20 and article 21, but not regarding other fundamental rights except article 20 and article 21. So these are the four points connected with this importance features of fundamental rights. We'll go to the next point, और next point है fundamental rights. अब कितने फंडामेंटल राइट्स हमको है उसका बाइफर्केशन किया है 7 डिफरेंट पॉइंट्स में। आप चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ में मेरे, मैं धीरे धीरे उसको एक 1 बाय 1 उसको कोट करता हूं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, rights against exploitation, rights against exploitation. Number 4, right to freedom of religion. Fifth is cultural and educational rights, cultural and educational rights. Then राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में था आर्टिकल 19(1)(f) में, और राइट टू प्रॉपर्टी नाउ हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(f) and it has been repealed later on, and article 31 is now right to property, which was repealed and added to article 300 as a constitutional right or legal right, and that was introduced by 44th amendment act 1978. शायद हो सकता है इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, तो ये चीज को जान लो। राइट टू प्रॉपर्टी पहले था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F फॉर फादर। उसके बाद में उसको वहां से जो है एक उसका लिंक्ड राइट जो था आर्टिकल 31 में था, राइट टू प्रॉपर्टी, ये दोनों को रिपील करके अभी उसको ऐड किया गया आर्टिकल 300 में। तो पहले जो फंडामेंटल राइट था वो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और उसको लीगल राइट भी बोलते हैं। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और लास्ट 7th पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो है आर्टिकल 32 से 35 तक जो आता है वो उसके अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये 7वां पॉइंट है। यहां तक समझ गए हैं?